नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्ते दोस्तों। फिर मैं हूं आपके पास एक अलग टॉपिक लेके, जिसके ऊपर पीछे एक एपिसोड पहले ही बना हुआ है, सिख पंथ के बारे में। इस बार उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। In the last episode, we talked about 10 gurus and their banis and how it was part of Hindu society, how it grew out of Hindu society as a reformist movement, as a defender of dharma. We ended by talking about Macauliffe, who was a British who rewrote the history of Sikhs and also reinterpreted Sikh scriptures in a way the British wanted. So from there began some problems between Hindu Sikh communities amplified by other people. So we will take it forward today. We have three very eminent and knowledgeable people with me. I'll begin with Dr. Ranveer Singh. Dr. Ranveer Singh is a professor of Punjabi in Dayal Singh College, Delhi University. He is principal investigator in research projects of Punjabi diaspora literature and issues of cultural identities. He has an Indian narrative traditions of Punjab. He is associated with the IIAS Simla for 6 times. He has written 21 books on Punjabi, 50 research papers, and he had presented 120 papers international conferences. He is also co-admin of Punjabi Literary website. He is an avid trekker. He has gone to Kailash Mansarovar and also Everest Base Camp. Namaste, Ravinder ji. नमस्कार सर, नमस्कार। सो इससे अधिक तो ज्ञानी को हमारे हो नहीं सकता था। एक और उनसे ज्ञानी हमारे पास और है, हरिंदर सिक्का जी। हरिंदर सिक्का जी is known more for his award-winning film Nanak Sahib Fakir, which has won many awards. His adaptation of Calling Sehmat became a hit movie called Razi, which got Alia Bhatt many awards. He has also done short films. He has written another book called Vichoda and also done short films. And he is a former lieutenant commander in Indian Navy, where he was for nearly 14 years. Now he's group director, strategic business at Piramal Group. And he has been awarded Global Anti-Counterfeiting Group's Paris Award and Indira Superachiever Award also. He's trained in IPR in Tokyo. So he has varied experiences and very deep studies. Welcome, Harinder ji. Sat Sri Akal ji. Sat Sri Akal. We have Rajan Khanna ji, continuing from the last episode. Rajan Khanna is an industrialist businessman, and he specializes in sports surfaces of various kinds. And he's an avid researcher of Sikh religion and Islam, and deeply religious Sikh, as we call Munna Sikhs. And he has deep insights into Sikh and much deeper insights into history and also scriptures. Welcome, Rajan ji. नमस्कार राजन जी। जरा ऊंचा बोलिए, नहीं तो आपकी आवाज चेहरा नहीं आएगा जी। हाँ जी, राजन जी आ गए। तो ये हमारी शुरुआत है। तो पहले I'll pick up from where I left off last episode, where you talk of Macaulay's entry into Sikh history. So Dr. Vinder Singh is the most qualified on this particular research, who has done a lot of work on this. So I'll request Ravinder ji to throw light on how Sikh history written by great sons and bhais and granthis turned into a Macauliffe history, which was exploited and misused by various segments of the society. Ravinder ji, welcome. नमस्कार जी सभी को। मैं प्रेफर करूंगा जी हिंदी में बात करना, क्योंकि बिल्कुल स्वागत है आपका, हिंदी में बात करिए। कोई इसका एक रीजन ये भी है कि जो हिस्ट्री की डिस्टॉर्शंस हैं उसमें मेजर जो पार्ट उसका रोल रहा है वो ट्रांसलेशन का रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कुछ मैंने जो अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम इन चीज़ों को देख पाएं। तो मैकॉलिफ से पहले का थोड़ा सा जो है एक बैकग्राउंड जो है वो मैं अपना जो मेरा एक आइडिया बना महाराजा रणजीत सिंह के बाद जब खालसा राज खत्म होता है, तो उस समय जो एंट्री है ब्रिटिश एम्पायर की, ब्रिटिशर्स जो आते हैं उस वक्त या उससे पहले पंजाब में जो खालसा राज जिसको कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का जो इम्पैक्ट एरिया था सतलुज के वेस्ट की तरफ था, और ईस्ट में जो था वो दूसरी छोटी जो जिसको पहले मराठा का एक इम्पैक्ट जिसमें रहा
लेट 17 और 18 तक का, उसके बाद अमृतसर का जो एक अकॉर्ड होता है, तो वो चीजें जो हैं वो इसमें भी रोल प्ले करती हैं। उस सारी टाइम की जो हिस्ट्री है, वो सारा समा एक ऐसा टाइम है टर्मोइल का, जिसमें कोई भी, मुझे लगता है कि फिक्स्ड किसी हिस्ट्री को, इतिहास को देखना सबसे मुश्किल है। खास तौर से अगर हम एक किसी कल्चर या किसी एक सेक्ट की आइडेंटिफिकेशन बिल्ड हो रही हो, उसको देखना। महाराजा रणजीत सिंह के बाद इमीडिएटली जो प्रॉब्लम सामने आई वो थी उनकी फौज की। उनकी जो फौज थी वो अनएम्प्लॉयड हो गई, उनमें काफी क्रैक्स आ गए और इधर उधर जो है वो भटके हैं। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश आर्मी ने काम किया सिख रेजिमेंट बनाने का, जिसमें उन्होंने रिक्रूटमेंट जट सिख्स एंड नो प्रेजेंट कैटेगरी में SC STs, ये उसमें डिफाइंड था कि ये उसमें नहीं होने चाहिए। तो एक तरह से इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अपीजमेंट एंड टू गेन द सपोर्ट, क्योंकि वो एक पेजेंट्री से भी बिलोंग करते थे। उनको ये दो चीजें, एक फर्टाइल एरिया में अपना होल्ड, और सेकेंडरी जो आर्मी, उनके पास अपनी आर्मी नहीं थी लेकिन उस स्ट्रॉन्ग होल्ड में उन्हें ये एक चाहिए था कि हमें अपना बेस बनाना है, तो उन्होंने आर्मी को एम्प्लॉय किया उनको पे करने के लिए। तो वो उनके साथ हो गए। जैसे सबसे बड़ा इसमें आप इवेंट देखते हैं सारागढ़ी का, वो जो है कि किस तरह फेथफुलनेस के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ 66 सोल्जर्स जो हैं, इनके उस किले को, सारागढ़ी को डिफेंड करने के लिए अपनी जान दे रहे हैं। तो इस तरह से ये हाईलाइट में आते हैं। और ये जो अलायंस है, ये अलायंस जो है ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे हैं और ले रहे हैं सिक्स को। एक चीज जो है ना, इसमें हम लोग हमेशा हिस्ट्री लिखते हुए मिस करते हैं, वो उस टाइम का एक बहुत पॉपुलर जो इमीडिएट आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह, जो शाह मोहम्मद है, जंगनामा लिखता है, उसमें एक उसका कोट है कि राजी बहुत रहंदे मुसलमान हिंदू, सिर दोहां दे उत्ते आफात आई, शाह मुहम्मदा विच पंजाब दे जी, कोई नहीं सी दूसरी जात आई। यहां मैं कहना चाहूंगा कि जो दूसरी जात का मीनिंग है ना, वो ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेज के लिए, लेकिन वो एक साइड जो ले रहा है वो ले रहा है मुसलमान और हिंदू, हिंदू इंक्लूसिव ऑफ सिक्स। महाराजा रणजीत सिंह के कोटियर के दोस्त और उनकी जहां से उसको सारा इनपुट मिलता है, जंगनामा का नाम है जंगनामा सिंगा ते फिरंगियां, मतलब सिंह या सिख टर्म 1850 तक भी एक कॉमन आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। आप कह सकते हैं कि पंजाब के हिंदू सिख थे या सिख हिंदू थे, उसमें कोई डिफरेंस, कोई, मुझे लगता नहीं कि किसी ने कभी इस टर्म को भी ऐसे एक्सप्लॉइट करने की जरूरत महसूस की हो। लेकिन जो मैकॉले का शायद पहले जिक्र हो चुका होगा कि जो उसकी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होनी थी, जिस ढंग से उन्होंने यहाँ की सोसाइटी को डिवाइड करना था, तो उसका सबसे पहला उनको जो रीजन वो यहाँ उनको मिल गया कि उन्होंने आर्मी की रिक्रूटमेंट और वो कर लिया। तो उस टाइम पे जो दौर चला, जो अहमदियाज का, और फिर जिसको मूवमेंट्स कहते हैं कि रिलीजियस मूवमेंट्स, अब रिलीजियस मूवमेंट्स ही कहना शुरू होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर उसको धर्म सुधार लहरें कहेंगे तो वो मिसनॉमिनल है। धर्म में सुधार, धर्म तो अपने आप में पॉजिटिव जो है कॉनोटेशन है, लेकिन जब रिलीजन है तो वो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। तो मेरा जो एक कहने का मकसद ये है कि इस पूरे टाइम में अगर हम मैकॉलिफ की हिस्ट्री और SGPC के कंपोजिशन तक भी जाते हैं, तो उस पूरे दौर में सिख कम्युनिटी को एक अलग आइडेंटिटी की तरफ ले जाना, और धर्म जो एक तरह से मतों में डिवाइडेड थे, एक्सेप्टेबल मतों में, उसमें डिफरेंसेस थे, क्योंकि हिंदू
सिख, बौद्ध, जैन, इनकी कॉस्मोलॉजिकल आइडिया सेम है, लेकिन सोशियोलॉजिकल उसमें डिफरेंसेस हैं। सोशियोलॉजी में वो डिफर करते हैं, क्योंकि भगती मूवमेंट में उसको एक तरह से काफी उस पर जोर दिया गया। लेकिन उसके इस सारी चीज को जिस ढंग से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने सपोर्ट किया कि जब रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट चली तो हर एक रिलीजन के लिए एक मजबूरी पैदा कर दी गई कि उनको अपनी आइडेंटिटी असर्ट करनी पड़ेगी। नहीं तो जो वहाबीज या अहमदिया की तरफ से एक एफर्ट किया गया और क्रिश्चियन मिशनरीज जो उस टाइम पे फैलने शुरू हुए, इन दो के लिए एक रिएक्शनरी इवेंट था वो, जिसको हम धर्म सुधार इसीलिए नहीं कहते क्योंकि रिएक्शनरी था। तो उसमें ये हुआ कि बाकी जो धर्म मतों के लोग थे, उन्होंने भी अपनी आइडेंटिटी को एक तरह से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक फेस क्रिएट करने की जरूरत महसूस की। ये वो दौर था जब अर्नेस्ट ट्रंप ने हिस्ट्री लिखी और गुरु ग्रंथ साहिब का अनुवाद करता है। उससे सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा एनॉय हुई, क्योंकि उसने जो चीजें की वो बहुत गलत हुई। तो उसको करते करते जो है एक तरह से जिसको कहते हैं कि डिवीजन पैदा हो रही थी, उसको करेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने मैकॉलिफ को जो है एम्प्लॉय करते हैं, डिप्यूट करते हैं कि आप इस सिचुएशन को ठीक करेंगे। और उसने आउट ऑफ वे इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ किया कि आज अगर हम सिख हिस्ट्री के जो सोर्सेज को देखते हैं तो उससे हर जगह अगर आप ऑथेंटिक माना जाएगा तो वो मैकॉलिफ को मानते हैं। सिख हिस्ट्री डिफरेंट अगर उसको माना जाता है, लेकिन उसमें अपनी प्रॉब्लम्स क्योंकि वो एक इंटेंशन से, एक रीजन से जो है वो क्रिएट की गई थी और लिखी गई थी। सो वहां से जो है एक शुरुआत होती है एक सेपरेटिस्ट आइडिया की। एक जब सेल्फ के लिए अगर आप अलग दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो उसमें कई चीजें छूटती हैं। इसी दौर में गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स जो चली हैं, जहां से अकाली पॉलिटिक्स जो है उसकी एंट्री होती है, तो वो दौर जो है वो इसको और स्ट्रेंथन करता है। जहां तक मेरा ख्याल है कि अकालीज का उस टाइम पे आना, एसजीपीसी का बनना, ये एक तरह से उनके लिए एक अचीवमेंट थी जो उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स से उन्होंने गेन की। लेकिन गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के दौरान जो उनकी टसल भी हुई ब्रिटिशर्स के साथ, तो उनको अपनी एक पावर का भी, एक यूनिटी का एहसास हुआ। तो उसमें एक चीज जो प्रोमिनेंटली उभर के सामने आई फर्स्ट टाइम, वो थी अ सेपरेट एजेंसी फॉर सिख वॉइस, जो कि अकाली बनते हैं। सो अकाली मूवमेंट जो है वो एक अलग तरह की एजेंसी के रूप में उभर के आई, जो कि सिखों का एक वॉइस बनती है। तो आपने जो उदाहरण दिया कि भाई ट्रांसलेशन में उन्होंने गड़बड़ की, कोई उसकी एक आध एग्जांपल आप दे सकते हैं जिसके अंदर की भाई जैसे हमारे संतों ने जो लिखा और उसको कैसे मिसइंटरप्रेट उन्होंने इंग्लिश में किया? क्योंकि मैं जब ये गुरु नानक पर किताब लिख रहा था तो उनकी जहां जहां मैंने बाणी ढूंढनी चाही, तो जो वेबसाइट पे बड़ा सुंदर उन्होंने अपने सारे प्रेजेंटेशन की हुई है सिख हिस्ट्री की, उसके अंदर हिंदी में ट्रांसलेशन है ही नहीं, सीधा इंग्लिश में है। और इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन को सॉफन किया गया है, और जो इस्लामिक जो एक इन्वेजन था, जो एक बहुत एक क्रूरता थी, उसको सॉफन किया गया। ऐसे मैंने कुछ पढ़ी बानियां, तो उसका कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? हाँ जी, उसमें जो है ना जो हमारी एक बेसिक एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है, जैसे ब्रह्म की बात है, सबसे बेसिक तो ब्रह्म की बात है, या सिस्टम ऑफ क्रिएशन को है, तो उन्होंने ट्रांसलेट इसको करते हैं गॉड में, और जो या कई बार उसको लॉर्ड में। अब ये दो टर्म्स जो हैं ये वेस्टर्न जो थियोलॉजी है उसका पार्ट बनती है, जो क्रिश्चियन रिलीजन के एनालिसिस का या उसके अध्ययन का एक पार्ट है। लेकिन धर्म जो है वो पूरी एक रिलीजियस जो एक पूरा उनका मैनिफेस्टेशन है,
जो उनका एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है उससे पूरी तरह भिन्न था। सो उसमें जब भी अभी भी अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देखते हैं तो जहां जहां पर अगर प्रॉपर नाउन में रामचंद्र का नाम आता है तब भी लॉर्ड, कृष्ण का आएगा तब भी लॉर्ड। हालांकि अगर गुरुओं ने, भक्तों ने ये नाम इस्तेमाल किए हैं तो उसके पीछे जो उनका आइडिया है, एक खास तरह के स्वभाव का, एक भाव का एक फर्क है। लेकिन सबको लॉर्ड के एक कैटेगरी में डाल देना, और लॉर्ड की जो कैटेगरी है वो बेसिकली उस वेस्टर्न थियोलॉजी की हायरार्की में नीचे आती है, ऊपर नहीं है। सो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एक मोनोथिस्टिक हो गया। यहाँ मोनिज्म है, मोनोथिस्टिक नहीं है। एक ईश्वरवाद जिसको हम कहते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट जो है, जब भी यहाँ के लोग अंग्रेजी में इन टर्म्स को पढ़ेंगे तो उनको ये लगेगा कि शायद एक जैसा ही है, और उससे जो पूरा हमारा कल्चरल एथोस था, जो हमारी धार्मिक ट्रेडिशन थी, परंपराएं थी, वो अर्थ गवा देती हैं। क्योंकि हमारे भक्तों ने और गुरुओं ने जितनी वाणी रची है उसके पीछे पूरा का पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा से निकले ये संकल्प जो निर्गुण, अब निर्गुण को और निराकार को अगर आप डिपिक्ट करते हैं तो निर्गुण को हम यहाँ साकार रूप भी दे सकते हैं, लेकिन हम सरगुण को अगर उनके थियोलॉजी में देखें तो वो सरगुण है। गॉड का कॉन्सेप्ट सरगुण है। तो सबसे पहला जो है, जपजी में भी जब वो ट्रांसलेशन होती है तो वहीं से ये इश्यूज हो सकता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हुए, क्योंकि उसका रिव्यू भी करवाया गया, लेकिन शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि इसका लॉन्ग टर्म में कितना असर पड़ेगा। जो हमारे रूट्स हैं, अगर हम उसमें से निकले शब्दों को छोड़कर नई दिशा में जाने की कोशिश करेंगे तो अपने अर्थ तो खो देते ही हैं। तो जो एक परंपरा चली आ रही, जो एक सनातन परंपरा हमारी ज्ञान की है, उससे तोड़ने का एक प्रयास था जो कि मैकॉले ने गाइड किया था, और उसको मैकॉले तक पहुंचते पहुंचते उसको यूज किया गया। ये वैसे उसमें एक जगह शायद इनकी सीआईडी की जो रिपोर्ट भी है 1921 में, उसमें इसका जिक्र भी मिलता है कि कैसे मैकॉलिफ ने ट्रंप के जो गलती की थी उसको करेक्ट करने के लिए ये काम किया जरूर, लेकिन उसमें उसकी अपनी भी एक जो शरारत कह लीजिए या एक स्कीम थी वो उसमें इनबिल्ट रहती है। थैंक यू जी। सिक्का जी को जोड़ना चाहेंगे? आपको जोड़ना चाहेंगे हरिंदर जी, सिक्का जी? जी जी जी। हाँ जी। तो मैं पहले कुछ मैकॉलिफ के बारे में जो मैंने डेटा जो पीछे पढ़ाई किया और समझने की कोशिश की थी, वो कुछ इस तरह से है कि he spent about 16 years in studying Guru Granth Sahib. Now, he was a devoted kind of a person who spent a lot of time in understanding what is written in Guru Granth Sahib. It wasn't easy. He took help of a lot of people. He was funded by Raja Hira Singh of Nabha, Rajinder Singh of Patiala, Ranbir Singh of Jind, and Ripu Daman of Nabha, and Ranjit Singh of Chachupali, and the Gaikwad of Baroda, and I'm sure there will be others as well. It goes to his credit that when he passed away in London in 15th of March 1993, he was actually reportedly reciting Japji Sahib. So his faith in that subject was pretty strong, what he was doing. I'm sure anybody who reads these holy books, beat any holy book, that will impress upon him, and it will wear like an umbrella over his head. And his book, the so-called the magnum opus, was titled The Sikh Religion, His Gurus and Sacred Writings. He authored that, and it was printed by Oxford University Press way back in 1909. Phenomenal effort it was, and he was definitely affected by the sublimity
of the Sikh style and high standard of ethics. And he, once he wrote that book, he also offered it back to Sikh clergymen, saying that here is the book, please go through it, and if you like it, I will publish it. But this is exactly where he also made a mistake. Why? Because he distorted, as per the books. There are various texts written, but what I have read, he distorted the relationship or the Hindu-Sikh community per se. In the Hindus, more often than not. Two of the books that I read, he had portrayed Hindus as Indian junglis. Now that was something which must have suited the Sikhs. So there was a very clever way of dividing that Sikhs are a very martial race. The fact of the life is that Panch Pyaras were Hindus. Banda Bahadur was a Bhardwaj Hindu. Prior to Guru Gobind Singh Ji becoming Guru Gobind Singh Ji, till he was Gobind Rai, all gurus were Hindus. So this kind of division, which was pumped in very cleverly, this had a British stamp on it. And British stamp was very clear all through the divide and rule, and that is why they've reached where they have reached. So I would say that 80-90% of work of Macauliffe was fantastic. It's fantastic. It's that book which is worth reading. And one should overlook and discount those negative words he has used about Hindus, and understand that he must have respected and appreciated the work done in those granths. He himself was reciting Japji Sahib when he died. So in my opinion, I would still weigh it in favor of Macauliffe, because he actually translated and put it in English. Where our leadership, Akali leadership, failed, they kept Granth Sahib as their private property, intellectual property, right? That nobody should translate it. Nobody should read it other than only the Sikhs, because it's difficult language, the original Gurmukhi. They did not encourage other than the Sikhs to acquire and procure these books. They're not easily available then. They are not easily available even now. Whereas if you take a look at it, you go to any hotel, there'll be a Bible lying there, Bhagavad Gita lying there. So there is an attempt by these people, these organizations, the Hindus, the Christians, the others, to put their holy books and let even if 10% of the visitors visiting hotels, read those, it's a knowledge being imparted. Now the English version of Granth Sahib will not be worshipped, or a Hindi version, or other versions, but they are not easily available. So this division was started by perhaps the Britishers and Macauliffe in somewhat way. It is also the Akalis who are equally responsible. They forgot that Maharaja Ranjit Singh was a Hindu. They forgot that Maharaja Ranjit Singh's the generals were Hindus who fought, and how. Maharaja Ranjit Singh had many wives. Amongst them were Muslims and Hindus. And he was an epitome, a pillar of secularism. And he joined hands with all these forces to take Hindustan where he did. Guru Nanak Sahab, I will come to that a little later. When I was making this film, there's a song on Guru Nanak Sahab that, give me a Janeau which connects me to God. Because his father was wearing Janeau. So we have allowed ourselves, to be carried away by the divisive forces. And it will happen all the time. We have to create awareness. Rajan ji, Sikka ji has given the other side of Macauliffe, and he
he agrees that he was cause for some of the distortions which actually were encashed by the separatist forces. So can you move ahead from where SGPC Act we talked about how it was used to further this politics by further separatist ideas that came up from there on? So Rajanji, yours. See, I would like to clarify things about Macauliffe. First of all, the intention behind bringing Macauliffe to translate Guru Granth Sahib and other scriptures, there was a mischief behind that. So first of all, intention was not clear. That is one point. Second point is like Sikaji pointed out, he was reciting Japji Sahib before he died. So there are so many versions. There's another version also. They said he said I'm converted Sikh, but when he died, he willed at that time I should be buried and not cremated like an other Sikh brethren. So that version is also there. So there are so many things which don't get verified. But see, that is okay. Fact is that these were used as the basis for many other laws that went on to slowly create a divide between Hindus and Sikhs over a period of time. So you can throw some light on that. Beginning with SGPC Act, then you have this different kind of Marriage Act, etc. Intention was at that time Malafite, when he was brought to translate the gist of the whole story is. You see, later than Macauliffe, what happened, because Britishers, as Ravinder Singh ji has already pointed out, they created Sikh regiment because they wanted at that time a kind of army force which they could use against Bengalis or other people which they have recruited during 1857. That there was revolution in Barakpur, Behrampur, Meerut. So later than that, Britishers knew, because they always had some kind of apprehensions from across Afghan borders. That was Russia. Always they wanted to contain Russia. So earlier, during Maharaja Ranjit Singh's time, they wanted to have a buffer state between the rest of India and Afghanistan. After a second Sikh Anglo War, they had Dost Muhammad in Afghanistan, Britishers, which they perpetuated there because they wanted to hold back Russian because Russians, they wanted to come to warm waters of Arabian Sea. They wanted to thwart that attempt. That used to be a single motive of the Britishers at that time. And later than that, they knew. The enemy says in 20th century, they are going to have many more attempts of crossing Afghanistan from Russia. So they wanted to have their proxies in Western Punjab and Afghanistan. So the first thing what they wanted to do, they wanted to have social demarcation in the Sikh Panth, because till that point of time there was no difference. Sikh was considered as a Panth of the part of the entire great Hindu pantheon. So they at that time they exhorted them to have a different Anand Karaj Act, which they enacted in 1909, and then onward Akali party was formed in 1920. 1921 there was one incident which was a kind of a watershed incident in the Sikh history. In Nankana Sahib, till that point of time, most of the Gurudwaras, they are governed and administered by Mahants. So in Nankana Sahib, there was a Mahant called Narayan Das. So he didn't have the state ways of governing the whole thing, and Sikhs, they said that Guru Nanak Dev Ji's Shiksha, their and Sikh Gurus, Banis, they should be properly, actually the Gurdwaras were meant for that. So what happened, he had some other ways, this Mahant Narayan Das, and in 1921, they attacked Nankana Sahib. There were many jathas which went there, and Britishers, they supplied arms to Mahant Narayan Das, which he used to fire upon
Sikh jathas. Several Sikh devotees, they were killed at that time. And then the new movement started that was about the governance of the Gurdwaras on all India basis. When did the voting rights of non-Keshdharis were removed, like Sindhis and Punjabis who are not wearing pagdi and beard? When were they removed from voting for SGPC? It happened later on in 1925. All India Your voice is breaking. Committee, the SGPC, they आप वीडियो बंद कर दीजिए आपका। when was आप थोड़ा वीडियो बंद कर दीजिए, आवाज साफ आएगी। आवाज ब्रेक हो गई। Let me set it right. Just a moment. अभी आवाज ठीक आ रही है, बोलिए। हाँ जी, एक मिनट जरा मैं इसको ठीक कर लूं। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है, ठीक है, आप बोलिए। आप तो 1925 में जब ये SGPC एक्ट बना, उसके बाद में वहां पे ये हो गया कि अकाली पॉलिटिक्स और गुरुद्वारा पॉलिटिक्स दोनों इंटरमिंगल होनी शुरू हो गई। हाँ, एक मिनट जरा मैं इसको ठीक कर लूं जी। हाँ जी, अभी आ रही है? हाँ जी। हाँ। और इसके बाद में मास्टर तारा सिंह करके एक शख्सियत उभरती है जो पंजाब पॉलिटिक्स में है, जिसका काफी बड़ा उस वक्त जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ तक कि जो यूनियनिस्ट गवर्नमेंट वहां पर बनती है अनडिवाइडेड पंजाब में, तो मुस्लिम लीग को रोकने के लिए सर सिकंदर हयात खान के बाद और बाद में सर खिजर हयात खान की सरकार बनी, उसको अकाली दल में मास्टर तारा सिंह के अंडर उसको सपोर्ट दी गई। तो इतना बड़ा उस वक्त अकाली दल का प्री पार्टीशन पंजाब में रोल हो गया। 1947 के बाद में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस वक्त जो 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन तुरंत शुरू हो गया। और पहले क्योंकि अनडिवाइडेड पंजाब जो आज का पंजाब भारत में है, पंजाब, उसके बाद में हिमाचल को अलग किया गया, 1966 में हरियाणा अलग हुआ, तो ये सब में उस वक्त इस प्रकार की स्थिति थी कि अलग अलग आवाज आ रही थी। कोई जो थे यूनाइटेड पंजाब के समर्थन में थे, अपने अकाली दल वाले जो है पंजाबी सूबा के समर्थन में थे। उस समय इन्होंने पहला चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के थे अपने गोपीचंद भार्गव, और उसके बाद में भीमसेन सच्चर, इनका जो सरकारें रही 1947 से लेकर के 1955-56 तक, इसमें इन्होंने बहुत डामाडोल राजनीति की। इन्होंने कोई क्लैरिटी उस समय सामने रखी नहीं। और इसमें ये सारे जो इस वक्त चित्र उभरता है, उसमें सबसे बड़ी गलती हुई उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जिस प्रकार के भारत की बाकी कई चीजों में उसने गलती करी थी, एक यह गलती पंजाबी साइकी को समझने की भी पंडित नेहरू ने बहुत कर दी थी। पंडित नेहरू का जो अपना एक असेसमेंट करता था अपने बारे में, कि अपने आप को बहुत बड़ा हिस्टोरियन जैसा समझा, उसने कुछ किताबें उसके ऊपर लिखी। तो और वो किताब अगर अपन देखते हैं तो उसको हमें आज मालूम पड़ता है कि उसकी जो असेसमेंट थी गलत थी। तो इसी प्रकार से सिख साइकी की असेसमेंट भी वो बराबर ढंग से कर नहीं पाया। तो 1956 तक वो डामाडोल काम चलता रहा। 1956 में प्रताप सिंह कैरों पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और उनकी हत्या 1964 में होने तक, ये 1956 और 1964 के बीच का जो कालाश था, इसमें काफी हद तक प्रताप सिंह कैरों ने उन्होंने एक नया पैराडाइम देने की कोशिश करी। उन्होंने उस वक्त कहा कि नहीं, पंजाब को विकास की जरूरत है, बाकी जब चीजें जो है धर्म का करने वाले जो लोग हैं उन पे छोड़ दीजिए, ये ज्ञानियों पे छोड़ दीजिए, धर्म गुरुद्वारों पे छोड़ दीजिए, आप धर्म को राजनीति में मत लेकर आओ। पंजाब को इस समय आर्थिक विकास की आवश्यकता है। और 1956 से 1964 तक प्रताप सिंह कैरों जी ने पंजाब को एक विकास के रास्ते के ऊपर वो लेकर आए। अच्छा, नेहरू के देहांत के बाद में, मैं फास्ट ट्रैक करूंगा क्योंकि समय कम है तो विषय बहुत लंबा है। नेहरू के
कि जिंदा रहने तक पंजाब में बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई उसका समाधान निकल रहा है पंजाबी सूबा का, वो बात सामने नहीं आई। उसके साथ साथ कुछ गलतियां उस समय के जो एक आर्य समाजी लीडरशिप थी उनकी तरफ से भी हुई। 3 अखबार निकलते थे जलंधर से, जो आज का ये हिंद समाचार है, पंजाब केसरी उस हिंद समाचार ग्रुप में के नाम से जाना जाता था। मिलाप के एक अखबार होता था और एक प्रताप होता था। इनमें से 2 अखबार जो है उर्दू में निकलते थे। अब सवाल ये आता है कि एक विदेशी भाषा में अखबार निकालते हो क्योंकि आपकी अपनी जो शिक्षा है उस भाषा में हुई थी, लेकिन पंजाबी जो आपकी माँ बोली है उसके आप उसका विरोध करते हो। ये बात जो है उस समय समझ में आने वाली बिल्कुल बात नहीं थी। आज अगर हम देखते हैं रिट्रोस्पेक्ट में तो बहुत बड़ी उस वक्त इन लोगों की जो समाज के लीडर बने थे इनकी बहुत बड़ी गलती थी। और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी पूजनीय गुरु जी का पंजाब में प्रवास हुआ। स्थान स्थान पर उन्होंने कहा कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी है, लेकिन अब अपनी हर प्रांत की अपनी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी अपनी एक भाषा है। वो भाषा जो है अब इसी तरह पंजाबी भाषा भी है, उसको उसका स्थान मिलना चाहिए। तो यही तो एक डिमांड थी उस वक्त बड़ी, उस पंजाबी भाषा के आधार के ऊपर जो है अपना सूबा जो गठित हो जाए। लेकिन नेहरू के रहते संभव नहीं हुआ। नेहरू के जाने के बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने इसको बात को फास्ट फॉरवर्ड किया और वो जो डिमांड है वो जाकर के 1 नवंबर 1966 को पंजाबी सूबा जो बन गया। अब पंजाबी सूबा बनने के बाद में जो मुख्य रूप से बातें सामने आ रही थी वो ये आ रही थी उस समय जो है अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई नहीं थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ना शुरू होने के कारण से पंजाब में प्रचुर मात्रा में पानी होने के कारण भी, लेकिन एक प्रिमिटिव जो है वो अपना क्रॉप पैटर्न होने के कारण से पंजाब बहुत उस वक्त समस्या, जैसे पूरे भारत में समस्या थी, हमारे पास अनाज की शॉर्टेज थी, पंजाब पूरा कर सकता था लेकिन नहीं था। तो रिवर वाटर का एक उस समय अपने सामने बात आई जिसको उस समय के अपने जो लीडरशिप थी उसने सही तरीके से उसको हैंडल किया नहीं। रावी ब्यास के पानी को किस प्रकार से यूज किया जाए, सतलुज के पानी को किस प्रकार से यूज किया जाए, पाकिस्तान के साथ में जो हमारी ट्रीटी थी इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें ये जो पूर्व की 3 रिवर थी ये पूरी इनका 100% पानी हमारे लिए था। ये पानी हमारे किसानों के काम आना चाहिए था। लेकिन उस समय की पॉलिसी जो थी वो इस समय इतनी कंड्यूसिव ना होने के कारण से और आपस में स्टेट्स का जो एक प्रकार से वो एक मत ना बनने के कारण से वो समस्याओं का काफी निर्माण हुआ। 1966 में पहली सरकार बनती है अकालियों की, जो संयुक्त सरकार होती है। सरदार गुरनाम सिंह उसमें चीफ मिनिस्टर आते हैं और एक बड़ी अच्छी बात है कि जनसंघ के साथ में इनका उस समय कई समय से मतभेद चल रहा था, लेकिन जनसंघ इस संयुक्त सरकार में साथ में शामिल होती है उस समय। और उसके बाद में 4-5 साल तक पहले गुरनाम सिंह जी रहे, बाद में लक्ष्मण सिंह गिल पंजाब के चीफ मिनिस्टर हुए। उसके बाद में चलते चलते तक ये 4-5 साल का कैलाश जो हुआ और 70-71 में वापिस से कांग्रेस सरकार आती है, यानी जैल सिंह वहां के उनके मुख्यमंत्री बनते हैं। इसमें जो आज का मॉडर्न इतिहास है जिसमें सिख पंथ को राजनीति के साथ में एक गुत्थम गुत्था कर दिया गया, ये एक प्रकार का ये एक जिसको कहते हैं वाटरशेड ईयर था कि अकालियों की जो है एक बहुत बड़ी इनकी कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन, पहले इसका जो पहला प्रारूप है वो 1973 में बनता है और ये पास किया जाता है 1978 में। अब सवाल क्या आता है कि 12 उसके मुख्य रूप से अपने मुद्दे थे आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के। अब आप अगर उनमें डिटेल में जाएंगे तो लगभग सारे जितनी भी डिमांड थी सारी पूरी हो चुकी है उनकी। एक डिमांड थी कि अमृतसर को जो है वो जो ड्राई पोर्ट भी बनाया जाए इंटरनेशनल। डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे आगे बढ़ना है। हाँ जी, तो आगे बढ़ना है मुझे, इसके और डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब ये जो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन है इसके अंदर एक और भी जो इंटरप्रिटेशन ये है कि इंदिरा गांधी ने लगातार जो अकालियों के शासन को अनस्टेबल किया, डिस्टेबलाइज किया, उनके चीफ मिनिस्टर गिराए और सब किया, उसका भी एक कारण था कि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन आया। और जो ऑटोनॉमस पावर्स की बात की, जिसने बहुत बड़े फेडरलिज्म की बात की, वहां से लेकर अकाली पॉलिटिक्स को एक नया मोड़ आया। और जो अकाली पॉलिटिक्स को नया मोड़ आया सिक्का जी,
आप बताइए कि उसमें मतलब प्रॉब्लम क्या आ गया। मैं तो मानता हूँ अप टू 1960 जो अकालियों ने मांगा या जो उनके मांग थी, सिखों को जो तकलीफ हुई या उनको एहसास हुआ कि हमको न्याय नहीं मिल रहा पॉलिटिकल, वहां तक तो ठीक था, क्योंकि डिले किया गया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, पहले तो डिले नहीं था। 1953 रिऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, पंजाब 1966 में बना, तो वहां तक पंजाबियों की, केवल सिखों की नहीं, तो पंजाबियों के मन में भी जो था वो एक कष्ट था कि भाई हमको सेंटर ने न्याय नहीं दिया। लेकिन आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन और वहां से पूरे रूप से इसको धर्म युद्ध मोर्चा बना देना, जिसके बाद टेररिज्म का टाइम आता है, टेररिज्म जाने के बाद भी उनको कहते हैं कि एंकरेजमेंट हुआ, तो सारे इतिहास में अकाली पॉलिटिक्स में गड़बड़ कहाँ? बहुत पीछे जाने की इतनी जरूरत शायद इस वक्त नहीं है। जिस चीजों का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा हिंदू सिख डिवीजन में, वो एक पर्टिकुलर फैमिली रही वहां, बादल परिवार। इनको, ये इलेक्टेड नहीं थे, वो सरकार इनकी नहीं थी, अकालियों की सरकार थी, और बादल्स को वहां पर ड्रॉप किया था, पैरा ड्रॉप किया गया था बाय इंदिरा गांधी। एंड इट्स एन हिस्टोरिक फैक्ट। और उस समय से जो एक मैसिव वेव चलाई थी कि हिंदूज सेपरेट हैं, सिख सेपरेट हैं, ताकि इंदिरा गांधी और कांग्रेस एक डिवीजन करके कंट्रोल कर सके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो मास्टर तारा सिंह जो हैं, उनको बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था कि मेरे जितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हमारी बहुत बड़ी आबादी है, ये सब सिख बनना चाहेंगे, और अगर ये सिख बन गए तो ये SC ST और दूसरे जो दूसरों को ऊंची छोटी नीची जाति का होता है जो है मेरे देश में ड्रामा, वो खत्म हो जाएगा। मास्टर तारा सिंह डिड नॉट अलाउ इट, नहीं होने दिया, क्योंकि ये सत्ता का साला खेल था। अगर वो आज हो जाता तो एक बहुत बड़ी समस्या इस देश से हट जाती थी। They have played divisive politics to protect their own turf, you know. So अब आप फिर आ जाइए एक बार कि क्या सिख थे या हिंदू थे, तो आप गुरु गोविंद सिंह जी पे जाइए या गुरु नानक से शुरू करिए। गुरु नानक जी, जब मैं फिल्म बना रहा था नानक शाह फकीर, तो मैंने अकाल तख्त से रिटन परमिशन लिया जो पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद में मुझे बोला गया, जब वो लॉन्च करने लगे तो SGPC ने टांग अड़ाई कि इसमें तो जी हमें भी देखना है, हमसे लीजिए। तो 6 महीना उन्होंने काम किया। जो उन्होंने ऑब्जेक्शन निकाले वो ये थे कि बेबे नानकी ने हाथ में काला टीका क्यों, काले रंग का धागा क्यों बांधा हुआ? फॉर गॉड सेक, शी वॉज ए हिंदू। वो एक हिंदू परिवार में थी, ब्राह्मण खत्री परिवार से थी, ओके। और गुरु नानक साहब कहते थे, माथे तिलक हाथ माला पाना, लोग ने राम खिलौना जाना। क्या पगड़ी और कपड़े और वस्त्र ये पहन के बोलते कि जब अब हमें राम मिल गया, वो ऐसे नहीं होता है। दिस इज व्हाट ही एक्सप्लेन्ड एंड दैट इज द पाथ दैट ही टुक। गुरु नानक जी joined Hindus and Sikhs and other communities. Unfortunately, the Akalis in particular divided that step by step, step by step, step by step, in order to take a complete control of Harimandir Sahib. हरिमंदर साहब को अभी हरिमंदर साहब कहते हुए झिझकते हैं, दरबार साहब कहते हैं, पता नहीं क्या रीजन है, बट नहीं कहते। ये अपने आप में अकेला ऐसा स्थान है जो गुरुद्वारा नहीं कहलाया जाता, हरिमंदिर साहब रखा गया था नाम। तो वी कैन गो ऑन डिवाइडिंग, और जितना मर्जी चाहे डिवाइड कर लीजिए। पार्लियामेंट में करीब 10-15 साल पहले एक लॉ निकाला गया था, पास कराया बादल्स ने, कि जी वही जो केशधारी अमृतधारी सिख हैं वही वोट कर सकें। तो एक ही स्ट्रोक में उन्होंने जो पंजाबीज हैं जो पगड़ी नहीं पहनते या जो पगड़ी पहनते हैं दाढ़ी रखते हैं लेकिन अमृत नहीं छका हुआ, तो वो वोटिंग से बाहर हो गए। सो दैट मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कैन वोट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी, so that they have the stock and control of money coffers. So ये सिर्फ पैसे का और सत्ता का खेल रहा है, और इस सत्ता के खेल में इन्होंने डिवीजन कर के आज इस स्टेज पे ले आए हैं हमको। कमिंग बैक टू नानक शाह फकीर, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन थे इनके जो कि गुरु नानक जी की बाणी से मेल नहीं खाते थे।
ओके। और एक सवाल उनसे पूछा गया था कि गुरु नानक साहब ने कहा कि भंड जमिए भंड निमिए, और वो आगे चलते जाते हैं, 100 क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। उससे पहले था कि नानक भंडो 12 एको सच्चा सोए। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि वी आर बोर्न टू अ वुमन, कंसीव्ड बाय वुमन, वी ट्रेवल विद वुमन, व्हाई डिमीन हर हु गिव्स बर्थ इवन टू किंग्स, and if there is anybody who's not born to a woman, it is one eternal Lord. सबसे ज्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड किधर हुआ? पंजाब में। अब उस वक्त पंजाब एंड हरियाणा एक ही था। आज सबसे ज्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड किधर है? पंजाब में। क्यों? बिकॉज they don't believe in Guru Nanak. They believe in which way they can earn money. 12,600 Punjab villages all drugged. Can it happen without the knowledge of the ruling party? That division has now gone beyond. That greed for money is gone beyond आपने division. दो बातें कही सिक्का जी, आपने दो बातें कही। एक तो आपने बताया कि किस प्रकार से शेड्यूल ट्राइब को अंबेडकर जी ने कहा तो इन्होंने उसको मना किया। दूसरी बात है कि जैसे आपने इन्फेंटिसाइड की बात की। तीसरा जो है कि वहां पर जो शेड्यूल ट्राइब के बड़ी मात्रा में सिख बंधु थे वो आज क्रिश्चियन बन रहे हैं। उसके बारे में एसजीपीसी ने आज तक कुछ शब्द नहीं निकाले। तो ये तो फैक्ट है। You see, we are not supposed to be low caste and high caste. But fact is that those who are ruling Akalis, they have this division called Jat Sikh, then Bhapa Sikh, then the other Mazhabis and Ramgadiyas, and the list is long. रामगढ़ियाज और इन सब के अलग अलग गुरुद्वारे हैं। इतना डिवीजन है कि रामगढ़िया वाला जाट सिख के गुरुद्वारे में नहीं जाएगा। In the country, in the holy city of Guru Nanak, we have fallen to that, stooped so low. तो division खाली हिंदू सिख का नहीं रह गया। So if you want to have a solution to this, you have to create awareness. Awareness कौन create करेगा? आप उनकी अगर भाषण और वाणी सुने तो उसी में वो गुरु ग्रंथ साहब को तोड़ मरोड़ देते हैं। You blame Macauliffe. The very fact that armaments reached inside Darbar Sahib, Guru Harmandir Sahib, you think that Indira Gandhi and her people were not aware of it? It was a pre-planned, well-planned, executed movement to create further drift, further divide, and have a central government rule and continue with business as usual. Today, what is the budget of only Harmandir Sahib? 1,000 crores. It is not transparent. There is no accountability. Why are there no SGPC elections? Because they are scared. If the other people who are Punjabis find their way in through an amendment in the articles, where will they go? The fault not lies with the Akalis or the Badals. The fault lies with the central government, that they are taking it easy. Oh, this is a small problem. It is not a small problem. This city or state of Punjab, which was once the food belt of the entire nation, is today drug belt of the entire nation. As a naval commander, I have also worked in Coast Guard, and at one stage we had stopped the drug smuggling through the Arabian Sea. So where did they open the via media? Through the Punjab borders. You mean to say tons of stuff is sent by the Pakistanis, it reaches Bombay, and we catch 500 grams, 200 grams, 1 gram. You mean to say that they are not aware? If that be so, what were Badals few years ago, few decades ago, and what is it now? Where has that money come from? Why was Mr. Majithia charged with 6,000 crores by the ED? No, you need to clarify this. You need to understand. I'm naming people because it is important that somebody must say, stand up tall and say,
that when I was in the military, there was no division between Hindus and Sikhs. We fought together. We planned together. We fought together. And the moment we come out, I'm called that, oh, you're not a Jat Sikh. You had no business to make Nanak Shah Fakir. You know, that is how step by step division has been created. I know of and a now it relative is- of mine, sir. I know of a relative of mine who is a Brahmin Sikh for last 3 generations. From at least 3 generations I know, maybe earlier, and he's in government job. So whenever issue of promotion came, he would say, "Tu is the Brahman ho, you are a Brahmin." So, like you said, this kind of casteism and differentiation is very bad and very hurtful for the society itself. I'll just ask everybody to have his last say, whatever topic they want to touch upon, 2 minutes each. Ravinder ji, you didn't speak again, so you want to add anything? हाँ जी, मैं थोड़ा सा इसमें ना बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि सिख एज इन पॉलिटिक्स क्यों अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाए या नहीं बना पा रहे। उसका एक रीज़न मुझे ये लगता है कि जब गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट चल रही थी तो उस टाइम पर उनका फोकस गुरुद्वारों को महंतों से आज़ाद करवाना था। बहुत सारे गुरुद्वारे थे, उसमें कई जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन जो था ब्रिटिश थे वो सपोर्ट करते थे और कई जगह इनके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे, क्योंकि लैंड एक्ट वगैरह या जो भी प्रॉपर्टी एक्ट थे वो उसको बाईपास करते थे। उनकी सारी फाइट होती थी धर्म की, वो राज को एक धर्म मान के चलते हैं। ये हमारी जो इंडियन टर्म है, पॉलिटिक्स सियासत है, उसमें धर्म जो है एक टूल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर राज अपने आप में एक धर्म है जिसको ठीक राइटसनेस से चले। तो एक्चुअली सिख साइकी में राज वही धर्म ही है, तभी हर जगह एक तरह से धोखा खा जाते हैं। और जब ये गुरुद्वारा मूवमेंट चल रही थी उस टाइम 2 तरह की तस्वीरें सामने आई। एक तो ये था कि वो उदासी सेक्ट से संबंधित महंत थे जिन्होंने कंट्रोल किया था, वो भी मुगलों से जब सिखों की लड़ाई हो रही थी तो उस टाइम पे टेक केयर करने के लिए, क्योंकि उदासी संप्रदाय भी गुरु नानक के उस ट्रेडिशन में से उनके बेटे के ट्रेडिशन में आता है, तो बहुत ढंग से वो ट्रांसफर हुआ था और चल रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें वो कह रहे हैं कि रिचुअल आ गए और बाकी चीज़ें आ गई, तो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में लेना शुरू किया। एक पोजीशन ये थी। और इंटरेस्टिंगली वो टाइम था जब कहीं देखा गया कि शायद उदासीज को हिंदू आइडेंटिटी मानकर उनके साथ एक टसल में कोई बात जा रही है, तो उस जगह पर जगत गुरु शंकराचार्य हिंदूज को अपील करते हैं कि आप इस एक्शन में सिखों के साथ हों। ये भी डॉक्यूमेंटेड है। तो ये चीज़ उस टाइम कहीं ना कहीं इस तरफ आ गया था। और फिर सारे जानते हैं कि नो कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रही थी उसमें कैसे गांधी इस रिलीजियस या एक धर्म उसमें एंटर करते हैं और फिर नेहरू एंटर करते हैं, और कैसे वो सपोर्ट अपनी तरफ लेके ब्रिटिशर से तो उनका गैप बन गया, लेकिन वो कैसे इंडिपेंडेंस तक उस सपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ भी हमें एक एंगल प्रेजेंट पॉलिटिक्स जो है सिख रिलेटेड पॉलिटिक्स का, उसको एनालाइज करने के लिए ये जरूरी है कि हम इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। बढ़िया जी। राजन जी। देखिए, ऐसा है कि समस्याएं हमने इतिहास तो जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत समस्याएं दिखती हैं। सवाल है वे फॉरवर्ड क्या है और किस प्रकार से, जिस प्रकार से गुरुओं ने जिस भावना के साथ में, जिस ऑब्जेक्टिविटी के साथ में उस समय जो स्पिरिचुअलिटी और उस वक्त जो जिस पंथ का निर्माण किया था, अगर हम सच्चे दिल से आत्मिक रूप से चाहते हैं कि उसका वापस से सारे उसमें हो, तो उसका आगे वे फॉरवर्ड क्या है उसके बारे में मैं 2 बातों में चर्चा करूंगा। देखिए, बाकी लोग क्या करते हैं उसकी विवेचना हो सकती है। ब्रिटिश ने तोड़ने के लिए क्या किया उसकी भी विवेचना होती है। आज आईएसआई का रोल क्या रहा वो भी हमें पता है कि पंजाब में कितना बड़ा षड्यंत्र आईएसआई का चल रहा है। या ब्रिटेन का रोल क्या रहा, ब्रिटेन बाद में पोस्ट 1947 जो सबसे बड़ा खालिस्तान का समर्थक था जगजीत सिंह चौहान,
इसको कई सालों तक ब्रिटेन ने अपने पास रखा क्योंकि उनको सूट करता था उसको रखना। तो ये सब बातें जो है ये समस्या का एक अंग है, लेकिन समाधान जो है वो बड़ा इसको बड़े सरल तरीके से देखा जा सकता है कि आज के विश्व में हम जो देख रहे हैं, लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा कर रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए। आज चाइना खर्चा कर रहा है, आज अमेरिका अपना एक प्लान लेकर आया, आज हम एक देश हैं, एक राष्ट्र हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो आज से 300-400 साल पहले उस पूरे राष्ट्र की परिकल्पना रख दी थी कि 5 प्यारे जो थे 5 दिशाओं से वो लेकर आए थे। तो ये तो हम तो कनेक्टेड है। आज पंजाब में कोई चीज बनती है तो वो तमिलनाडु जाने में 4 दिन भी लगते नहीं है। तमिलनाडु से कोई चीज पंजाब में मंगानी होती है, कल को जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक बदलाव आ रहा है। जम्मू कश्मीर तो पूरे भारत के साथ पंजाब के रास्ते रुका है। पंजाब का व्यापार तो बहुत तरक्की कर सकता है वहां से जम्मू कश्मीर में, जैसे ही शांति की स्थापना होती है। तो पंजाब में आज जिन चीजों को धर्म के साथ में जोड़ करके राजनीति को, जिन मुद्दों को ये आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जिनको मैं कहते हैं कोई सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है, कोई कुछ है, ये जो लोग हैं, तो इनको एक बात की समझना चाहिए कि आज एग्रेरियन इकोनॉमी थी पंजाब की, ठीक है। इसने अपना रोल अदा किया ग्रीन रेवोल्यूशन में। जब पूरे भारत में उस वक्त अनाज कम था तो 4% के ऊपर पंजाब की इकोनॉमी जो थी तरक्की कर रही थी। लेकिन आज 4% पूरा भारत का अगर तरक्की करता है डबल डिजिट में और पंजाब 4% पे रह जाएगा, ये बात हमको किसी को भी माननी नहीं है। और किसी भी दुनिया में चले जाए, कोई भी अग्रेरियन इकोनॉमी 4-4.5% से ज्यादा तरक्की नहीं कर सकती है। तो उसके लिए हमको एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी तो लानी ही पड़ेगी। आज अगर पूरे भारत में आईटी हब्स हैं सब जगह पे, बेंगलोर में है, मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, उत्तर भारत में गुड़गांव में, तो पंजाब में भी एक आईटी हब होनी चाहिए। पंजाब का युवक क्यों कनाडा का स्वप्न देखे और उसको वहां का स्वप्न दिखा करके और बाद में कहें आपके साथ में यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। ये जो बात है ना, ये समाप्त हो सकती है। हम क्यों ना इस प्रकार से, इस दृष्टि से देखें और धर्म का जो है उसका सही स्वरूप से, जिनके पास में इस बात की जिम्मेवारी है कि ताकि, और क्योंकि मैं तो मानता हूं इस बात को, मैं कि गुरु नानक जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी जितने भी हमारे गुरु हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनकी वाणी है, पूरे भारत को सिख होना चाहिए। या केवल एक समाज विशेष की बात क्यों करते हैं? तो धर्म तो ऐसा ही होना चाहिए। और जहां तक बात रह गई है कि राजनीति को धर्म से अलग कर करके चलेंगे तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। बाकी हिंदू सिख में तो किसी प्रकार का ये जितना मर्जी कोशिश करें भेद डालने की, क्योंकि ये 1990 का पूरा दशक इन्होंने प्रयास कर दिया कि भाई जो टेररिज्म है उसको हम समाज तक लेके जाएं, ये उसमें विफल रहे पूरी तरह से। उसमें वो केवल कुछ आपकी आवाज रुक गई। मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। हाँ जी, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। जो आपने कहा कि सिखों की जो ज्ञान है ये सारे भारत को मिलना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब जो है हम कह सकते हैं कि वेदों का एसेंस है, सारी भारतीय थॉट का एसेंस है। और ये 300वीं गुरुता गद्दी का जब कार्यक्रम चल रहा था तो सारे देश में गुरु ग्रंथ साहब है क्या बताने की कोशिश की गई थी। तो इसी प्रकार जो सिक्का जी ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी है ये आम भारतीय तक क्यों नहीं अलग अलग भाषा में पहुंचती, इसका प्रश्न भी एसजीपीसी को पूछना चाहिए, जिनके इतने बड़े बड़े बजट हैं। और जब सिक्खी की जानकारी सब लोगों को होगी तो अपने आप आपस में प्रेम बढ़ेगा, अपने आप ये दूर की जो भावना है वो हटेगी। तो लास्ट कमेंट सिक्का जी, सो वी क्लोज द डिस्कशन। I'll start with again Guru Nanak Ji because he was the founder of Sikhism as a way of life, not as a religion. उन्होंने धर्म बनाने के लिए नहीं किया था। तो जब बाबर ने अटैक किया तो उन्होंने कहा था खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया और एतिमार पई कुरलाने तैकी दर्द ना आया. He complained to God and used the word Hindustan, that Babur has come from Khorasan and is butchering India. Hindustan. All right. Possibly the first time somebody used the word Hindustan. He was talking about Hindustan, not Sikhistan. It's a very basic concept if you follow Guru Nanak Ji. Then there are groups called Nirmale. बड़े prominent हैं, बड़े simple सीधे. Knowledge about the dharma and the Sikhism is far superior, far wonderful, but they are not considered Sikhs.
likewise, in the Nihangs, they are not given their. Till recently, they were treated as vagabonds. It's just now that Lamborghini has come out with a model, and to promote it, they put a well dressed Fauji in a military attire, a Nihanga in front, and said that they compared the two. So what I'm trying to basically say is that these are man-made divisions. If a serious effort is made, if the Punjab youth is given his place in this under the sun, these divisions can be removed in no time. Right now, we are not making an effort, whereas we should not only be making an effort, we should also be seen as making efforts. Thank you so much. It is very enlightening discussion today we had. बड़ा अच्छा सबने अपने अपने विषय रखे और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक विषय को राजनीति का रंग ना देते हुए एक समाज के एक इशू के रूप में आप सबने बताया और बहुत गहराई तक सिक्खी की फिलॉसफी, किस प्रकार से हिंदू सिख फिलॉसफी में अंतर नहीं है, एक ही इनकी जड़ें हैं, अलग अलग उनको बताने का तरीका है। और जो आपने विषय रखा कि गुरु ग्रंथ साहब तो सारे ज्ञान की एक बहुत सुंदरता से सादे शब्दों में रखी गई चीज है, एक ज्ञान है, ग्रंथ है जिसको सभी भाषाओं में सबको बताना चाहिए और उससे लोगों को एक तो सारी हमारी संस्कृति अच्छी तरह समझ आएगी और ये भी ध्यान में आएगी सारे संत महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर तक सभी संतों की वाणी है, सभी भगवानों के अंदर जिक्र है और ये सबको एक साथ जोड़ता है। हाँ सिक्का जी, आखिरी मिनट। I want to add one very wonderful thing that you reminded me. गुरु ग्रंथ साहिब पंडितों, ब्राह्मणों और संतों की कंबाइंड बाणी है. It is India's gift to Punjab, and Rig Veda is Punjab's gift to rest of the world. We forget these basics. You know, और जितने संत हैं और 26 तो पंडित हैं जिन्होंने अपनी वाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सौंपी. लिखने वालों ने तो इसमें कभी हिंदू सिख नहीं देखा. आपने हरिमंदर साहब पर पकड़ा दिया अकालीज के हाथ में, जो क्वेश्चनेबल अकालीज, इनसे पहले बादल से पहले क्वेश्चनेबल अकालीज इतने नहीं थे. तो डिवीजन आपके सामने आया है. बहुत बहुत धन्यवाद जी रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, हरिधर जी, बहुत आनंद आया मुझे. मैं आशा करता हूँ कि सारा ज्ञान, ये सारी बातें हमारे बच पाएंगे और उसका सही अर्थों में उसको उपयोग में लेकर आगे विषय को बढ़ाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद जी. नमस्कार. थैंक यू सर. सत श्री अकाल.